Hello, students. Anya, Vidhi, you are back with me. Last time you have given very good performance in the quiz, and now we are beginning a new topic here. As you can see, students, why do we fall ill? That is a topic that's in your course in NCRT, students. Can you tell me why do you fall sick, students? Do you ever fall sick? Yes, tell me yes or no. Are you ever falling sick? Have you ever got fever? Tell me. Have you ever got viral fever or Yes, any? yes. You have got it. Are you eating right type of food? Are you doing exercise, students? You have seen in the morning, you have seen a lot of people getting up early in the morning, students, and doing exercise. Have you seen it? Tell me. Did you see that? Did you see that in the morning, lot of people are doing yoga in the parks? Tell me, have you seen it? Yes or no? Yes, sir. Okay. Why are they doing it, students? What is the reason that people are doing exercise in the morning? This is because they want to be healthy and fit. It's a very important issue, student. What is an important question we are talking about, students? What we are talking, students, that our health question. What we are saying, what is the meaning of, students, when I say good health? What is the meaning of a good health, students? What is the meaning of a good health? That when I say, oh, he has a good health, he has a perfect health, or when you say that he is healthy, some person you are saying is healthy, but we all know that what do you mean by health and what do you mean by disease? Sometimes what happens, you are experiencing pain, or you are having headache, or you have having stomach disorder. Do you having all these stomach disorders, fever, students, you are facing all these things in your life. You are tired, exhausted, you feel exhausted. What you are experiencing, students? What do you mean by, you see, the if I use a word healthy, healthy is not that you will always have fever and or sick, then only you will be saying that you are not healthy. If you have some mental problem, emotional problem, negative thinking, that is also shows you are unhealthy, students. So health is not simply you don't have fever or you don't have headaches or you don't have pains. It could be more than that, student. We will like to see in this chapter, student, what do you mean by health? And if I use the word disease, students, disease, you see this, what is, and this is ease. What is the meaning of ease, students? Ease means you are at peace, you are comfortable. Ease means, student, you are comfortable, you are at peace. But when I say dis-ease means you are discomfortable. You are not feeling happy, you are not feeling healthy, you are not enjoying every moment of your life, students. So we can say that even if you don't have any disease, if you don't have any fever or any major illness, still you could be having a disease, students. So when we talk of health, students, when we talk of health, what is the meaning of health then? So when I will say health, students, it means physical, mental, social well-being, which I am calling a psychological psychological well-being. So there is emotional well-being, there's a spiritual well-being,
So many things are there, students. When I talk of good, that you are healthy, you say that I am healthy. Then I said, you are, why you are healthy? Because you are going to the market and do your work. You are healthy. You go to the school and study the class. Study in the class, you come back. But many times you are coming back, you feel exhausted. You feel tired. Do you feel tired when you come back from school? Tell me. Tell me, when you go to the school and attend up to 2 p.m. from 6 a.m. in the morning, when you come back, do you feel tired and exhausted, students? Yes or no? Yes, sir. So you are not feeling very healthy. I am saying it is not a very, very happy state. You are not in a happy state. At times you have anger in your mind, frustration in your mind, student depression, examination pressure. So many things are there. So mental problem is there. Nowadays, in the lockdown, students, you are locked down, yes or no? So in the lockdown, are you happy? Tell me. Are you No, sir. satisfied? No. What you are missing? What is the problem? That you are not able to play. You are having no social interaction, and you have to sit in the home and even study on those laptops which we are doing. So you are not healthy right now. We are not healthy, as I am saying, under these conditions in which we are working. Psychological pressure is there on the students. Yes or no? Tell me. Do you have a psychological pressure nowadays or not? Are you feeling mentally tired, stressed? There is some stress, there is a tension. Tell me yes or no, students. You are having stress? What type of pressure you are having? You are, a lot of students are talking of depression, students nowadays. Depression. So you are not having fever. You are not having any pains, but still you are not feeling healthy. Are you feeling healthy? Tell me yes or no. Why you are not feeling healthy? Because of your mental state. So when I'm saying health means state of mental mental, physical and physiological well-being, students. Mental, physical and physiological well-being. So physically you are okay. Physically you are okay nowadays. You are not having any pain, or you are not injured. You are not having any difficulty in any of your part of the body. But you are suffering from mental pressure, social pressure. You cut down from socially, completely cut down, students. There is a psychological and emotional pressure. Spiritually, you are not happy. Your mind is not happy, students. You are not in a very happy state. So we can say that the present state is unhealthy. Do you say that or not? Tell me. So you are not having a disease of fever or anything, but still your mental state is not healthy. There's stress in it, there's a pressure in students. So actually you have seen that what you are made up of, students. You are, so what I am talking, students, health is a state of mental, physical and psychological well-being of an individual. First thing, when I talk of health, I am talking of physical state, mental state and psychological state, students. You are okay physically, mentally, but psychologically you are having tension, pressure, and that means still you are not having a good health, you are not well-being. There is some problem, students, with our health. When I say disease, student, what do you mean by disease? I said ki, according to the meaning of the disease, I told you this is. Ease is a comfortable position, student. Ease means you are at rest, you are comfortable, you are at peace. And dis-ease means you are not comfortable. You are not comfortable, students. You are not
feeling at peace with yourself. Something is going on, students. So that is how the meaning of disease was given. The disease, usually we will say that disease is a condition of abnormal dysfunctioning of mental physical states. What do you mean by abnormal dysfunctioning, students? What has happened? I'm saying abnormal dysfunctioning. Abnormal dysfunctioning. Why do I use that word abnormal dysfunctioning, students? Abnormal dysfunctioning. Why do I use, what is the meaning of dysfunction? Can you tell me, student, why do I use the word dysfunction here? What is the meaning of that? Tell me. What is the meaning of this, student? Dysfunction. Tell me. Can you tell me? Anya, what do you think? What is the meaning of dysfunction? What is the meaning of dysfunction? What I'm talking, students, abnormal dysfunctioning. What is dysfunctioning? What is dysfunctioning? Vidhi, what do you mean by dysfunctioning? You are made up of what? What are you made up of? Tell me. What are the basic units of your life, students? Tell me. You studied about that. Anya, what are your basic units? What are the basic units of which you are made up of? Cells? So cells. Cells. And cells are made up of what? Chemical substances. Cells have got chemical substances, student. Yes or no? Tell me, what are the chemical substances which are present in the cell, students? What are the cells which we told you? Proteins. You are eating proteins na every day. You are eating carbohydrates. You are eating carbohydrates, student. They are all chemical substances. You are eating fats, all lipids. बोलो ये सब चीजें खा रहे हैं तुम? प्रोटीन Yes, खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, फैट्स वगैरह खाते हो, ये सब खाते हो क्या नहीं? डाइट में लेते हो? आर यू टेकिंग इन द फूड और नॉट? तो ये क्या करते हैं? इनसे ही सेल बनते हैं आपके. ये सब चीजें सेल में हैं. तो अभी भी हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं? दे आर एट रेस्ट और दे आर डूइंग समथिंग. बोलो, सेल्स क्या करते हैं बॉडी के अंदर? ये सेल्स में क्या हो रहा है? रिएक्शंस हो रही हैं कॉन्स्टेंटली. क्या क्या हो रहा है सेल्स में? हमने बताया था सेल्स आर नॉट एट रेस्ट. कुछ रिपेयर हो रहे हैं, डैमेज हो जाते हैं और उनमें एक्सचेंज होती है. क्या क्या एक्सचेंज होता है सेल्स में? बताओ जल्दी. सेल्स क्या कर रहे हैं बॉडी के अंदर? तो तुम्हारे सेल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? मैं तो बाहर बैठा हूं, अंदर तो सेल बहुत सारे हैं. मिलियंस ऑफ सेल्स आर वर्किंग इनसाइड योर बॉडी. दे आर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और इफ दे आर नॉट मूविंग, व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज ए रिपेयर गोइंग ऑन. कुछ मर रहे हैं, कुछ और बन रहे हैं. ये सारा प्रोसेस बॉडी में चल रहा है. और सेल्स के लिए फूड, व्हाई डू यू ईट फूड एवरी डे? किसके लिए खाना खाते हो? कहाँ जाता फूड आपका? वो जो सेल्स होते हैं वो ले लेते हैं खाना बॉडी में. तो सेल्स के अंदर सेल कैसे बनेंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन. तो वट एवर फूड यू आर ईटिंग, देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द सेल. देखा था तुमने? यस और नो? जल्दी बताओ. क्या सेल्स में ये सारी चीजें एक्सचेंज होती हैं? बोलो. ये फूड सेल्स को चाहिए कि नहीं चाहिए आपके बॉडी में? बताओ कि आपके बॉडी में जो सेल्स हैं, डू दे नीड न्यूट्रिएंट्स और नॉट? जल्दी बताओ. बताओ विधि, जल्दी बताओ कि क्या जो तुम्हारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, डू दे नीड न्यूट्रिएंट्स और नॉट? yes sir. अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे. तो कैसे होता है वो प्रोसेस? अभी भी वो मैंने खाना खाया तो वो बॉडी के अंदर चले गया,
अभी मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा, सब तो सेल्स की तरफ जाना है। मेट एक्सचेंज हो रहा है, लिपिड्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं स्टूडेंट्स। उनको गैसेस आपको पता है, ऑस्मोसिस हमने बताया था, डिफ्यूजन बताया था, ये सारी प्रोसेसेस सेल में हो रही हैं। और हमारे जो ऑर्गन्स और टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट, हमारे बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बन जाता है और फिर ऑर्गन्स बन जाते हैं टिश्यूज से। तो अभी भी ये सब अंदर काम कर रहे हैं मेरे। क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग देयर वर्क। क्या आपका हार्ट बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी बताओ मुझे, बताओ, आपका हार्ट बीट कर रहा है अभी भी? आने की तरह हार्ट बीट कर रहा है? बोलो, चल रहा है कि नहीं हार्ट? Yes, sir. क्या कभी रुकता है? No, sir. इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग ये वर्क कर रहा है। इस तरह से आपके अंदर किडनी है। किडनी क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी इन योर बॉडी? क्या कर रही है किडनी? आपको पता है डायलिसिस, डायलिसिस का नाम सुना है, बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये किडनी क्या करती है? किडनी क्या करती है स्टूडेंट्स? तो आपने जो कुछ खाया है उसको फिल्टर करती है ना, वो यूरिन पास कर देते हैं हम। अगर किडनी का काम बंद हो जाए तो क्या होगा? बॉडी के अंदर पॉइजन्स पैदा हो जाएंगी। तो किडनी क्या कर रही है? आपके बॉडी की पॉइजन्स को थ्रो कर रही है फ्रॉम योर बॉडी। तो जो आप एक्सक्रीट करते हो यूरिन, वो कैसे हो रहा है? किडनी जो है आपका सारा पॉइजनस सब्सटेंसेस को थ्रोस आउट ऑफ योर बॉडी, वो किडनी जो है फिल्टर कर देती है। तो वो वर्क कर रही है मेरी बॉडी में। मैं तो बाहर बैठा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, अंदर तो अभी भी प्रोसेस चल रही है। वो चल रही है नहीं चल रही? आप तो पढ़ रहे हो मेरे से, लेकिन अंदर तो सेल काम कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? तो नए सेल बन रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, कुछ रिपेयर हो रहे हैं। और डिफरेंट जो पार्ट्स हैं बॉडी के, हार्ट अपना काम कर रहा है, लंग्स जो है, लंग्स अपनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, किडनी जो है फिल्टर कर रही है आपके पॉइजनस सब्सटेंसेस को, और यूरिन के थ्रू सारे लिक्विड्स बाहर आते हैं। और अगर इन सब में कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे फिर स्टूडेंट्स? फिर क्या होगा? अगर आपके बॉडी के जो सेल्स, जो टिश्यूज, जो ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई डिसफंक्शन हो जाए, क्या हो जाए? डिसफंक्शन। तो उससे क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द कॉज, व्हाट इट विल रिजल्ट? तो वो आपके अंदर डिसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? डिसीज। मैं बात कर रहा हूँ इलनेस की। इलनेस के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि अगर सारी चीजें सही भी चल रही हैं, हम मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, क्योंकि ये दे आर ऑल कनेक्टेड विद वन अनदर इनसाइड योर बॉडीज। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स, आपके सेल वर्क कर रहे हैं, योर tissues are working, your organs are working, and the cells are being repaired students. The cells need food students, and some cells will die students, new cells will be formed students. तो ये सारी प्रोसेस एक फंक्शन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिफरेंट फंक्शंस कर रही है। यस और नो? बताओ, फंक्शंस कर रहे हैं कि नहीं सारे आपके टिश्यूज और ऑर्गन्स? यस और नो? जल्दी बताओ कि आपके बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। Yes, sir. अगर वो फंक्शन में डिसफंक्शन, मतलब फंक्शन खराब हो गया, नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा फिर? अगर किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? बताओ, फिर तो पॉइजन ऐड हो जाएगी, तो फिर तो आप बीमार हो गए। यस और नो? हो गए बीमार क्या नहीं? Yes, sir. तो आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और अगर आपके जो बॉडी के अंदर आपने का बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो क्या हुआ फिर? तो आपका बीपी हाई हो गया, तो माल फंक्शनिंग, डिसफंक्शन हो रहा है, जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके अंदर डिसफंक्शन पैदा हो गया है। तो इसीलिए हमने ये वर्ड यूज किया, एबनॉर्मल डिसफंक्शनिंग। तो डिसीज इज ए कंडीशन ऑफ, किस चीज की कंडीशन है स्टूडेंट्स? टेल मी। एबनॉर्मल डिसफंक्शनिंग। किसकी डिसफंक्शनिंग हुई है? ये जो आपके अंदर सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स काम कर रहे हैं,
अब उनके अंदर डिसफंक्शनिंग हो गई है, and once the dysfunctioning will take place student, that will lead to illness, that will lead to illness. और ये मेंटल फिजिकल स्टेट्स आपस में कनेक्टेड होती हैं स्टूडेंट्स। जब आपका पेपर आते हैं तो माइंड में बहुत प्रेशर हो जाता है, होता है कि नहीं होता? आपके बताइए जल्दी, क्या तुम्हें जब एग्जामिनेशन प्रेशर होता है स्टूडेंट, जल्दी बताओ, क्या Yes. एग्जाम्स के दिनों में विधि, क्या तेरे पे एग्जामिनेशन प्रेशर होता है? प्रेशर आता है कहां पर? मेंटल। बोलो यस और नो, बोलो। आने तेरे प्रेशर आता है एग्जाम के दिनों में? Yes, sir. तो इससे क्या होगा? तो मेंटली कुछ स्टूडेंट डिप्रेस हो जाते हैं। अभी आपने एक केस पढ़ा था कि एक स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रेस। तो इतना प्रेशर बन गया तो वो बीमार हो गया, क्या हुआ? सिक हो गया। तो मेंटल स्टेट भी हमारी, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। और वो क्या हुआ कि बहुत सारे एग्जामिनेशन डेज में क्या होता है कि मेंटल प्रेशर के कारण स्टूडेंट्स, स्ट्रेस पैदा हो जाती है, स्ट्रेस के कारण स्टूडेंट्स को भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, और उन्हें नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां वो करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी बीपी भी हाई हो जाता है ड्यूरिंग एग्जाम, और अस्थमेटिक हो जाते हैं कोई स्टूडेंट्स, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का गला खराब हो जाता है, किसी का पेट खराब हो जाता है। सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो तुम लोग। बोलो हुआ कि नहीं एग्जाम के दिनों में? हुआ? बता, आने तक तो बहुत इंटेलिजेंट है, जल्दी बता क्या हुआ। सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं कि नहीं हम एवरीडे लाइफ में? Yes, sir. तो ये डिसीज क्यों हो रही है, हम क्यों फॉल कर रहे हैं इल? क्या सिर्फ खाने से था कनेक्शन? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स स्टूडेंट्स विच आर अफेक्टिंग अस। तो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिसफंक्शनिंग होगी स्टूडेंट्स, कैसी? मेंटल या फिजिकल स्टेट की, मेंटल या फिजिकल स्टेट की डिसफंक्शनिंग होगी तो इट विल लीड टू इलनेस। यहाँ पे क्या लिखा हमने, क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स? नोट कर लिया आपने? डिसीज इज द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल डिसफंक्शनिंग ऑफ द मेंटल फिजिकल स्टेट्स दस लीडिंग टू इलनेस। आपको जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, क्या करते हो? नाक से वो बह रहा है और गला दर्द कर रहा है, गला दर्द कर रहा है स्टूडेंट्स, तो आपके बॉडी के अंदर डिसफंक्शन हो गया, आपकी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब दवाई ले रहे हो कि सांस पूरा ठीक तरह आ नहीं रहा स्टूडेंट, तो डिसफंक्शन हो रहा है। तो रीजंस अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों हुआ, वो तो अलग अलग रीजंस हैं। तो कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग सेल्स और टिश्यू में अगर होगी, देयर विल बी लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। देखो जिस दिन आपको बहुत तेज जुकाम हो गया या बीमार हो गया, तो आप जो नॉर्मल एक्टिविटी बॉडी की थी उसको नहीं कर पा रहे। बोलो कर लेते हो? इफ यू आर अंडर हाई फीवर कैन यू डू द नॉर्मल वर्क, यस और नो? बॉडी जो नॉर्मल No, sir. एक्टिविटी करती है स्टूडेंट्स, नॉर्मल एक्टिविटी करती है, क्या आप उसको कर लेते हो जब आपके अंदर कोई जो फंक्शनिंग हो रही है सेल्स की उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए? टेल मी। No, sir. नो सर, वेरी गुड। प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही। आप यू कैन कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद मी स्टूडेंट्स बिकॉज दैट इज शोज योर इंटेलिजेंस। जितना ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उतनी ज्यादा लर्न करते हैं चीजों को, उतना हमें समझ आती है, उतना तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ती है स्टूडेंट्स, और उतना तुम्हारा पता लगता है कि कितने तुम इंटेलिजेंट हो, कितना टैलेंट है तुम्हारे में। जब दुनिया को नहीं पता तो हमें पता लग जाता है कि तुम, मेरे अंदर दिमाग है, तुम उसका यूज करना है। हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं हर चीज को समझने की। बस हमारा व्हाट वी आर ट्राइंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। हर वर्ड का कोई मीनिंग है, उसको समझने की कोशिश करनी है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हुई तो उसे क्या बोलते हैं? लैक ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग। लैक ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग, लैक ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग हो गई तो लैक ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग से क्या होगा स्टूडेंट? तो जो सेल्स और टिश्यूज की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही बॉडी के अंदर, क्या क्या है? सेल्स और टिश्यूज, तो उससे हमारे हमारे को इलनेस हो जाएगी, इलनेस हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है WHO है, अभी भी देख रहे हो ना टीवी में WHO।
बोलो व्हाट इज WHO? WHO क्या है स्टूडेंट्स? So World Health Organization. तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी न्यूज दे रहा है अभी कोरोना कौन कौन से कंट्री में चल रहा है और अभी बढ़ेगा और क्या क्या, हाउ टू, व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक, द इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय WHO कि जो कंट्रीज हैं उनकी वार्निंग भी वो देता है और ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताता है कि कैसे कैसे करना है। तो वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज नॉट ओनली लैक ऑफ इलनेस और एब्सेंस ऑफ डिसीज बट अकॉर्डिंग टू WHO क्या है 1973 में ये कहता है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरिली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। मतलब ये है कि देखो तुम्हें कोई फीवर नहीं है, कोई बुखार नहीं है, ठीक है, घर बैठे हुए हो, अब तुम सोशली कट हो गए, यू आर सोशली कट, अब क्या हुआ फिर, तो आपका मेंटल एंड सोशल वेलबींग नहीं है, तो वो भी जो है एक आपका मतलब हम कह रहे हैं कि अब हम हमारी जो हेल्थ है, हम अब हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, वी आर नॉट हेल्दी बिकॉज वी आर socially and mentally not well-being, we are cut off socially completely, we are mentally also having some pressure students, some stress, some tension, so it is not कि हमें जरूरी है कि कोई फीवर होगा या कोई ऐसी बीमारी होगी तब हम सिक हैं, तो it is soundness of body and mind, that condition in which functions are duly and efficiently discharged। तो ये माइंड और बॉडी की कंडीशन है स्टूडेंट्स, माइंड और बॉडी की कंडीशन है, मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, किसकी, माइंड और बॉडी दोनों मिलके इनकी कंडीशंस हैं। तो व्हेन फंक्शंस आर ड्यूली एंड एफिशिएंटली डिस्चार्ज्ड बाय ऑल द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बोलो ये स्टोरी समझ में आई? अभी तक का कुछ समझ आया? Yes, sir. तो आपको पता लगा कि जो तुम्हारी हेल्थ है, हाउ विल यू डिफाइन योर हेल्थ स्टूडेंट्स? इट इज अ स्टेट ऑफ, जल्दी बोलो, योर हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, किस चीज की स्टेट है ये? मैंने पूछा स्टूडेंट्स योर हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, बताओ क्या फिल करोगे इसमें, आगे बताओ क्या इसमें क्या डालूंगा मैं? So physical, mental, social well-being. यस, तो आपकी जो हेल्थ है वो मेंटल, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बहुत सारी चीजों से बनी हुई है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी आएगी तो तब जाके आप बीमार हैं, तो हेल्थ सारी चीजों पर डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स। ओके, ये तक समझ आ गया, आगे चलते हैं। देखो ऐसा क्यों होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होती है, कौन चीजें हैं जो आपकी हेल्थ को डिटरमिन करती हैं स्टूडेंट्स? अब बताओ कि तुम्हारी जो हेल्थ है वो किन किन चीजों से अफेक्ट होती है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच विल अफेक्ट योर हेल्थ? अब बताओ, तुम बता सकते हो कुछ चीजें? So surroundings. सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट तुम कह रहे हो, और कुछ और बताओ कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको डिटरमिन करेंगी स्टेट ऑफ द हेल्थ को? एनवायरनमेंट तो तुमने कह ही दिया कि देखो कि आजकल तुम सोशली कट ऑफ हो गए, घर में बैठे हो, तो फिर मेंटली वेलबींग नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो बीमार हो रहे हैं और कह रहे हैं हम स्कूल में जो कुछ हो रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जाम में तो बिल्कुल फेल हो गए हम, हमारे कुछ आए नहीं मार्क्स, क्योंकि वो जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा लेसन। हम पहले तो क्लासरूम में पढ़ते थे, अब बहुत डिफिकल्ट हो रहा, वो 100 बच्चे होते हैं तो क्लास में कुछ समझ नहीं आता, तो मेंटली क्या हो रहा है, तो जो कंडीशंस हैं इस टाइम, एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, दे आर नॉट फेवरेबल, दे आर नॉट फेवरेबल, दे आर नॉट हेल्दी, दे आर नॉट हेल्दी फॉर द स्टूडेंट्स। तो वो एक बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं मेंटल स्टेट के अंदर। और फैक्टर्स बताइए, देखो कि हर चीज के लिए यू नीड मनी, फाइनेंशियल स्टेटस है, अगर बहुत सारे गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है फूड खाने के लिए, घर रहने के लिए, तो वो क्या करेंगे फिर?
उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो कई फैक्टर्स हमने दिखाए। देखो ये आपका जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हमने कहा, इनकम है, सोशल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क कंडीशन, कि जहाँ पर आप काम करते हैं स्टूडेंट, वट एवर टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, इफ दैट इज नॉट हेल्दी देन ऑल्सो यू विल फॉल सिक स्टूडेंट्स। योर वर्किंग कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं स्टूडेंट्स, तो उनके पास नॉलेज नहीं है, देन व्हाट दे विल डू, उनको कुछ पता नहीं है कि बीमारी क्यों होती है, कैसे आती है, वो फॉल सिक कर जाते हैं। आपके कुछ बचपन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, जो बच्चे खेल रहे हैं हेल्दी हैं, जो बच्चे नहीं खेल रहे स्टूडेंट्स वो अनहेल्दी हो गए हैं, या उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में कुछ डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। तो आप फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर अर्थक्वेक आ जाए तो फिर क्या होगा? देखो फ्लड्स बहुत आए हैं इंडिया में, आए हैं फ्लड्स, बोलो बहुत जगह फ्लड्स आए हैं क्या? Yes, sir. हैवी रेन्स, और अर्थक्वेक भी आए थे कहीं। कई बार मैंने लाइटनिंग भी देखी, ऐसे लाइटनिंग हुई है कहीं और वो गिरी है, बिजली गिरी है कहीं जगह, बहुत लोग मरे। तो ये सारी चीजें, ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारा, मतलब अगर अभी भी देख रहे हो कौन सी जगह बहुत बारिश हो रही है, सारा पानी बॉम्बे में क्या लोगों के घरों में पहुंच गया। तो फिजिकल एनवायरनमेंट खराब हो गया, फ्लड्स आ गए, बहुत सारे लोग तो बह गए और बहुत बीमारी फैल गई पानी से। ये अर्थक्वेक आते हैं तो क्या होता है, बहुत बिल्डिंगें बड़ी बड़ी गिर जाती हैं, सब गिरती हैं। अभी भी एक कौन सी बिल्डिंग गिरी है किसी जगह पर, पता नहीं 45 बच्चे मर गए। ये अभी कोई ब्लास्ट हुआ था, अभी कहीं आग लग गई है, वहां भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। जब फिजिकल एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तुम्हें बता कि वो फॉरेस्ट में फायर्स बहुत लगती हैं कैलिफोर्निया में, और वहां पे भी कितने लोग जलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, देखो इफेक्ट करेंगी हमारे को। सोशल स्पोर्ट्स एंड कोपिंग स्किल, देखो जब तक हमें सोशल स्पोर्ट नहीं मिलता तो प्रॉब्लम है। जो बच्चे डिप्रेशन में हैं स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को कोचिंग नहीं मिल रही और कोई सही स्टडी नहीं हो रही, उन्हें स्पोर्ट चाहिए, तो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, कोचेज हेल्प कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट मिल जाती है, तो आप कंफर्टेबल हैं, आप बेटर फील करते हैं, एग्जाम के लिए अच्छे फील करते हैं। और जिनको सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स की, जिनके पास टीचर्स नहीं है और प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल रही, देखो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही अपने स्किल्स के लिए, तो वो बच्चे क्या करेंगे, बीमार हो जाएंगे, उनको टेंशन बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, वो दे कैन नॉट डू सो वेल, सो दे आर वरीड अबाउट इट स्टूडेंट्स। और देखिए बिहेवियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बिहेवियर हेल्दी हैं, पॉजिटिव हैं, जो कर्टियस हैं, काइंड है स्टूडेंट, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, उनका वो ज़्यादा हेल्दी हैं। और कुछ लोग लड़ते हैं एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, तो उनका क्या हाल होता है, तो उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। और हेल्थ सर्विसेज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि देखो कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्या आपको हेल्थ सर्विस मिल रही है? तो हेल्थ सर्विस कौन देता है स्टूडेंट, हु विल गिव यू हेल्थ सर्विस? देखो जो बीमार होके कहाँ जाते हो तुम लोग, डॉक्टर्स के पास जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो। इफ यू डोंट हैव प्रॉपर हॉस्पिटल्स स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव प्रॉपर हेल्थ वर्कर्स। अभी भी देखो वो कह रहा है ना, कोरोना के लिए बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये कोरोना में बहुत सारे कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स, और उनके लिए वो क्लैपिंग करते हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं तुम्हारे। कौन सी, देखो नर्सिस और डॉक्टर्स जो हैं, और भी नर्सिस डॉक्टर्स और बहुत सारा स्टाफ है स्टूडेंट्स, ये सब क्या कर रहे हैं, ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमें हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगी स्टूडेंट्स तो क्या होगा फिर, बीमार को एम्बुलेंस की नीड बढ़ जाएगी, तो एम्बुलेंस इज नॉट अवेलेबल, फिर क्या होगा, बहुत डिफिकल्टी होगी। इफ आई एम नॉट एबल टू रीच द हॉस्पिटल स्टूडेंट, एक एक्सीडेंट हो गया किसी का रोड पर और उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिला स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ब्लीडिंग हो जाएगी ओवर, और वो डेथ भी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे केसेस यू नो अबाउट इट स्टूडेंट्स। बायोलॉजी एंड जेनेटिक एम्पावरमेंट होती है, कि जो जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स, वो भी होती हैं। कुछ टाइप के ऐसे जेंडर्स हैं स्टूडेंट्स हमारे, कुछ ऐसे कल्चर्स हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट कल्चर्स में तुमने देखा कोई ट्राइबल एरिया में रहता है, कोई
कैसे अभी भी ट्राइब्स हैं और डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनके दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग स्टूडेंट्स। कईयों के अंदर कल्चर में सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो वो मोर हेल्दी हैं, कई नहीं उठते। रेसिज्म भी है, कोई ब्लैक है कोई वाइट है, कहते हैं जी ब्लैक को टॉर्चर मिल रहा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे कोई कंट्री है वो दूसरे टाइप के लोगों को टॉर्चर करता है, जैसे पाकिस्तान में जो हमारे थोड़े बहुत हिंदूज हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ पर उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मिनॉरिटीज़ के साथ। ऐसे लोग कई जगह पर हैं वर्ल्ड में थोड़े थोड़े, जिनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, डेटरमेंट्स हैं ऑफ द हेल्थ। और कोई तुम्हारे दिमाग में है तो बताओ फिर, टेल मी, कोई और चीज तुम्हें पता लगे कि किससे मेरी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है कोई आने तुम्हारे पास कोई और आइडिया कि हाउ योर हेल्थ कैन बी इफेक्टेड बाय एनीथिंग, या कैसे तुम फील करते हो? अगर तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगी कहीं से सोशल, तो नेचुरली यू विल फॉल सिक। बताओ विधि, कुछ और है तुम्हारे पास कि मैंने ठीक बताया ये सारी चीजें, और भी हो सकता कुछ? चलो ठीक है फिर। I hope this a lot of points have been discussed in this. I'm talking of what is the health and failure student. What is the significance of health? ये जो हेल्थ है हमारी स्टूडेंट्स, इसका सिग्निफिकेंस क्या दिख रहा है तुम्हें? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टूडेंट? और एक हम यूज करते हैं वर्ड वेल बीइंग। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब क्या होता है कि इफेक्टिव फंक्शनिंग। फंक्शन तो हो रहा है, इफेक्टिव फंक्शनिंग स्टूडेंट्स, इफेक्टिव फंक्शनिंग। आप बाजार गए कोई चीज लेने पे मार्केट में, और आप कह रहे हो मैं बिल्कुल वेल बीइंग हूं, आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग। अगर आप इफेक्टिव फंक्शनिंग नहीं है, फॉर अवर ग्रैंड मदर्स बीइंग एबल टू गो आउट टू द मार्केट और टू विजिट टू नेबर्स इज वेल बीइंग। देखो कुछ ओल्ड लोग हैं तुम्हारे घर में, क्या है तुम्हारे ओल्ड लोग, ग्रैंड पेरेंट्स कह रहा हूं। ये जो वेलबींग की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होती है, डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट होती है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अब वो क्या सोचते हैं कि वो किसी नेबर के घर चले गए, दे हैव गॉन टू ए नेबर और ए रिलेटिव, वहां पे उन्होंने टाइम स्पेंड कर लिया, कितना 1 आवर 2 आवर, और खूब बातें कर ली, तो वो कहते हैं कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ। वो समझते हैं कि ये वेलबींग है। क्या है वेलबींग? वो मार्केट में चले गए, मार्केट में जाके उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीद ली, तो वो वेलबींग है उसकी। और एक डांसर है स्टूडेंट, डांसर, ठीक है, तो वो उसकी अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, देन ही इज हैप्पी। वो क्या है, बहुत खुश है, वो वेलबींग है। अगर वो परफॉर्मेंस दे रहा है और वो खराब आ गई, जितना वी वांट टू गिव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस स्टूडेंट, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी नहीं है, तो वो क्या है, अनहैप्पी, अनहैप्पी। तो उसकी वेलबींग किसके ऊपर डिसाइड होती है? और हिज वेलबींग इज डिसाइडेड बाय हाउ मच परफॉर्मेंस, हाउ गुड परफॉर्मेंस he gives while he is dancing। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिशियन है, उसका वेलबींग क्या है? वो कह रहा है कि मेरा तो ये है, मैं कितना अच्छा म्यूजिक बजा सकता हूँ, हाउ वेल म्यूजिक आई कैन प्ले। अगर वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो वो कहता है वेलबींग। और उसे नहीं होता तो वो वेलबींग नहीं है उसके लिए। तो यू आर गोइंग इन ए स्कूल, क्लासरूम में बैठ गए, अब आपको लेसन समझ ही नहीं आ रहा,
टीचर कुछ करा रहा है, आपको समझ नहीं आया, तो फिर वेलबींग आपका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपका क्या वेलबींग है? तो इसके बारे में फिर बताओ, इसका क्या मीनिंग हुआ? आने मैं क्या कहना चाहता हूं बताओ। आप एक चीज को बहुत लाइक करते हो और यू कैन डू इट वेरी गुड, तो आप बहुत उसको एंजॉय करते हो। और अगर आप उसको नहीं एंजॉय करते तो फिर उसका क्या माइंड पे प्रेशर बनता है आपके, और सोचते हो बेकार है। तो इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? बताओ, व्हाट डू यू कॉल दिस स्टूडेंट्स? इसको क्या बोलेंगे आने? क्या कहते हैं कि इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, एक का एटीट्यूड नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड है जिसका, तो नेगेटिव है, ये तो बस बेकार है। तो इसको क्या हेल्थ मिलेगी? तो तुम्हारी हेल्थ जो होती है स्टूडेंट, वो एक हेल्दी एटीट्यूड भी होता है। क्या होता है? हेल्दी एटीट्यूड। यू गॉट माई पॉइंट? देखो, हेल्दी एटीट्यूड इज ऑल्सो रिलेटेड फॉर द वेल बीइंग, so that what will happen if you are not, your attitude is not healthy student, the parts of your system which we were talking about, कौन से पार्ट्स जो तुम्हारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं, उनमें कुछ डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाएगी, तो उनकी स्टेट वेलबींग नहीं है। क्या है? स्टेट वेलबींग नहीं है। तो क्या होगा? फिर इलनेस हो सकती है। तो इलनेस, जब मैं सिग्निफिकेंस का हेल्थ कहता हूँ, बहुत है कि हेल्थ का क्या मतलब होता है। अगर मैं काम ऐसे कर रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग वर्क विच इज वेरी स्ट्रेसफुल, इफ आई एम नॉट able to do the things I want students with good performance, whatever I want to do, तो भी वेलबींग नहीं है। तो ये एक एटीट्यूड है which is healthy attitude is required student for the being well, for the being well। बोलो, समझ में आई बात? बीइंग वेल क्या होती है? बताओ आन्या, तुम्हें समझ आया कि तुम Yes, सबसे sir. बेटर कब फील करते हो? विधि, तेरे को पता लगा क्या 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 मतलब बता रहा हूं मैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ? क्या होगा? हेल्दी एटीट्यूड होना चाहिए। तो ऐसा वर्ड कौन सा मैंने यूज किया? हेल्दी एटीट्यूड। दैट विल, health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially। तो हम फिजिकली, मेंटली और सोशली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें स्टूडेंट्स, उसे ही हेल्थ कहते हैं। तो हेल्थ ऑफ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, ये भी एक डेफिनेशन मिल गई तुम्हें। हेल्थ की, इसको नोट कर लिया तुमने? मैंने यहाँ लिखा है, हेल्थ इज देयरफॉर ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ठीक है? हैव यू नोटेड डाउन स्टूडेंट्स? Yes, sir. वेरी गुड। अरे तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि देखो, तुम हर चीज को समझ लो। मतलब यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्या कि कितना समझ आ रही है बातें। देखो, हम लोग जो भी जैसे भी रह रहे हैं, हमें अपनी हेल्थ को ठीक कैसे रखेंगे, वेलबींग कैसे होगा, और ये डिसीज क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, सारी बातें हम बहुत डिटेल में वी आर गोइंग टू टेल यू इन दिस चैप्टर। ये आप एक्सपीरियंस करोगे, एक्सपीरियंस कर दो एवरीडे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में। तो आपका मेंटल, आपका फिजिकल और सोशल वेलबींग ही हेल्थ है आपकी। फिजिकल हमने बताया कि हेल्दी एटीट्यूड जो है, ये भी हेल्थ है आपका। वेलबींग क्या होता है? जो काम आप लाइक करते हो वो आप करते हो, तो आपको अच्छा लगता है। और अगर वो अच्छा नहीं होता तो वो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट है। हर एक की अपनी अपनी नीड्स हैं सोसाइटी में। इफ दे आर एबल टू डू इट वेल, सो इट इज वाई हेल्थ एंड फेलियर आर रिलेटेड स्टूडेंट। हेल्थ एंड फेलियर आर रिलेटेड। इफ आई फेल इन माई गिविंग गुड परफॉर्मेंस, देन माई हेल्थ इज also, I mean, affected by that। it is not well, it is not well, क्योंकि वो सारे बॉडी के पार्ट जो फंक्शन कर रहे हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, यहां तक समझ में आई? अब देखो, हमने बताया है कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। अब ये क्वेश्चन आया था कि हाउ डज कम्युनिटी इश्यूज अफेक्ट योर हेल्थ?
भाई आपके हेल्थ, आप योर पर्सनल हेल्थ जो है स्टूडेंट्स, वो कम्युनिटी इश्यूज से भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? देखो आपका जो एनवायरनमेंट है, तुमने मुझे बोला था अभी एनवायरनमेंट, आन्या यू टोल्ड मी सराउंडिंग्स। एनवायरनमेंट क्या है तुम्हारा? सराउंडिंग्स। एनवायरनमेंट क्या है तुम्हारी? सराउंडिंग्स। जैसे कि अगर आपका सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम आ गई, जैसे मैंने कहा फ्लड्स आ गए, साइक्लोन आ गया, और कोई फायर लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें सराउंडिंग्स जो है हमें हमारे को अफेक्ट करती हैं, बिकॉज वी लिव इन सोसाइटीज। स्टूडेंट, हमारे हम सोसाइटीज में रहते हैं, आइसोलेटेड नहीं रहते। हमारा पास एक सोशल एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स, वी हैव ए सोशल एनवायरनमेंट। देखो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी तुम्हारे कंट्री के अंदर, बताओ, टेल मी व्हाट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कमिंग। बताओ, आने विधि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम बहुत ज्यादा, अभी भी चल रही है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आई थी? टेल मी, गिव नेम वन important problem which we were facing in the community, students. Sir, pollution and garbage. Okay, very good, excellent आंसर, तुमने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। अच्छा, मैं तुम्हारा नोट कर लूँ। एनसीईआरटी ने तो सिर्फ गार्बेज लिखा, लेकिन तुमने पोल्यूशन भी बताया, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। गार्बेज एंड पोल्यूशन स्टूडेंट, माय गॉड, यू नो दैट last summer garbage pollution was so much that everyone was wearing mask and schools were closed for few days। हुए थे स्कूल बंद, इतना स्मोक आ गया था। बोलो Yes, यस और, sir. तो स्मोक बहुत ज्यादा हो गया था। सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत खराब हो गया था स्टूडेंट, और वो बीमारी फैल गई थी, वो लंग्स इन्फेक्शन शुरू हो गई थी, और स्कूल बंद करने पड़ गए थे। दूसरा क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर रोज कितना गार्बेज इकट्ठा होता है, वो बाहर फेंकते थे। पहले ओपन ओपन हम फेंक, जो गार्बेज थ्रो कर रहे थे, अभी भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, गार्बेज करते हैं थ्रो। ये स्ट्रीट्स पर अभी भी बहुत मिलता है मुझे गार्बेज, तो गार्बेज बहुत थ्रो होता है। अब ये गार्बेज है और ओपन ड्रेनेज है, ये जो पानी गंदा नीचे जाता है स्टूडेंट, बहुत सारे ओपन है ड्रेनेज। उनमें क्या होता है, ओपन ड्रेनेज होगा तो वाटर कंटामिनेटेड है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारे जर्म्स होंगे, बहुत सारे जर्म्स होंगे। जो स्टेगनेट वाटर है, उसमें क्या होता है, स्टेगनेंट भी है जो वाटर, पानी जो रुक जाता है स्टूडेंट, उसमें मच्छर, यू नो मॉस्किटो एंड ऑल दैट फैला, जो अभी फैला था, मॉस्किटो जो है आपका, मलेरिया और ये सब जो फैलते हैं एवरी ईयर स्टूडेंट्स, वो घर में आके चेक करते हैं ना एमसीडी वाले की, कोई कूलर तो नहीं है आपके पास, वो आता है 1 महीने में एक बार की, कूलर तो नहीं है कोई पानी में, तो वो क्या करता है, मेडिसिन होती है, उसके बाद वो कहता है मैं दवाई डाल देता हूँ, क्योंकि वो उसमें क्या होगा, मॉस्किटो ब्रीड कर जाते हैं, तो मॉस्किटो ब्रीड हो जाएंगे तो क्या होगा फिर, डेंगू। डेंगू का नाम सुना है तुमने? कितना डेंजरस डिसीज है स्टूडेंट्स। ये सब चीजें, गार्बेज जो है, बहुत ही ज्यादा अच्छा आंसर दिया तुमने आन्या, कि दोनों चीजें बहुत बड़ी किलर हैं। क्या है? किलर है, ये मार सकती हैं हमें, ज्यादातर बीमारियां फैल रही हैं इससे। तो गार्बेज के लिए क्या करेंगे फिर हम? ये प्रॉब्लम है हमारी, कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स की। अब इसके लिए हमने क्या क्या किया है, इससे क्या होगा कि आवर हेल्थ विल बिकम पुअर। तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पब्लिक क्लीनलीनेस is very important, student,
very important student for your health. बोलो यस और नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। बोलो ये सही लिखा मैंने गलत? टेल मी। तो क्लीनलीनेस Yes. वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जहां भी रहते हैं स्टूडेंट्स, जो भी वहां पर है, गार्बेज का थ्रो ना किया जाए। और ये स्मोक से जो कार्बन के पार्टिकल से जो पोल्यूशन होती है, we should try to avoid it and minimize the pollution in the atmosphere, students. This will result in poor health. This will cause poor health, students. तो हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी, खराब हो जाएगी स्टूडेंट, खराब हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अभी भी इज ए वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब इन्होंने क्या किया कि गार्बेज को जलाने के लिए वो बना दिए ना कि व्हाट दे डू, दे बर्न द गार्बेज, इलेक्ट्रिकली बर्न कर देते हैं। वो पहले गार्बेज हाउसेस तुम्हारे ओपन थे ना, तुमने देखे थे। अब क्या किया हुआ है, उसमें कुछ मशीनें लगा रखी हैं, तो वो क्या करते हैं, गार्बेज को बर्न कर देते हैं उसके अंदर। तो ये सारा चल रहा है, गार्बेज डिस्पोजल का चल रहा है बहुत बड़ा। हाउ टू डिस्पोज द गार्बेज इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट्स। अब एक और पॉइंट बताओ तुम जल्दी से, और कौन सा पॉइंट तुमने पता होगा? टेल मी विधि, टेल मी व्हाट एल्स इज देयर पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज में which matter your health, personal and community issues which matter your health, student. What else is the important point? You see that you will need food for health. तो फूड कैसे करोगे? फूड यू हैव टू अर्न, you have to earn the food, students. For that you have to do some work. So you must have work. See, proper work should be there. There should be good conditions and jobs for individual health. They are important, that we should be able to provide jobs and work so that the economic condition is good. Economic condition is good, students. When the economic condition will be good, students, this will give good health. Or if economic condition is bad, students, we don't have jobs, we don't have work, so our health will be affected. Abhi, recently, you have a lot of migrant laborers due to corona pandemic. You have seen them, they are they have no work to do. They have gone back to their homes, students, and they are facing serious health problems. So this is another important thing, student. Then another problem is, students, behavior should be good. We must treat others with good behavior. If we don't treat people with respect, we are not courteous, we are not kind, students. If our behavior is bad with others, then what will happen? And if we are afraid of each other, then we cannot be happy. Our behavior is good, we will be happy. And happiness means the health which is dependent on this, student. So when we talk of health, it has to be happy state. If it is unhappy, bad, student, then health will be affected. And we can see there should be social equality. Social equality and harmony. Harmony means people should work together. People should work together, should like each other. They should not separated for the individual health, students. Many other connections between community issues. So these are some of the important issues
between the community and individual health. But we talked of community issues, and individual health. And individual health, students. So what we have, community issues and individual health. If you have anything else, do you know anything more than that, you can tell me. So your environment should be clean. Cleanliness is most important. Garbage disposal should be done properly. Pollution should be avoided, and people should get work, and they should be happy. There should be harmony, social equality, and all this will be affecting the individual health of individual in our country. बोलो yes or no? ये सारी बातें समझ आई? Tell me. Yes, sir. So we end up the topic here, student. This is our end, and we will then meet you in our next class, students. There will be one test on force and laws of motion also that we will tell you, which will be on numericals, and we'll continue with this topic. So it's a good topic, it's a general topic, good topic, general topic. You can also tell me the things which you know about this. If you have more things, you can tell me what more you know about this community issues, health, disease, because right now corona pandemic is a serious issue, you know, and we are trying to survive by building our immunity system strong, and a lot of people are affected mentally, children especially of the schools, because you have seen your health means physical, mental, and social well-being also. Socially, we have no connections. Children are unable to play the games. Children are not interacting, and all the time they are sitting at home. So naturally, some pressure is there, and this is affecting the health. Okay, then bye bye. I will meet you in my next class. Thank you very much for answering large number of questions and helping me in delivering this lecture on health and why do we fall ill, students. This is a general topic, and we'll continue more about this because this topic is most relevant in the present corona pandemic. This is the most important topic. Okay, then stay healthy, stay home. Bye bye. Thank you, sir. Okay.